Right, good morning everyone. How are you all? I hope you are fit and fine at your places. So let's just start with our class today. In today's class, we are going to discuss examples of chapter 6, some important examples, okay? So first example which I am going to discuss today is page number 101, example number 4. It's a good example, okay? Example number 4. So just look here what is there in this example. I am just telling you, just a moment. Diagram has been given to you in the question. The diagram is like this. Just look here. We have a line PQ. We have one more line which is RS, right? And Y as 2 points on PQ and RS. This is 135 degree. This is 40 degree. I'm sorry, 40. This is 40 degree, right? And this is angle M. I'm so sorry. Now, what is given in the question? It is given PQ is parallel to RS. Angle MXQ is 135 degree. Angle MYR is equals to 40 degree. And you just need to find, what? We need to find angle X and Y. Okay. So how we are going to find this angle X and Y? It's not at all tough, okay? So just look here, this is X. This is X, alright. So we need to find the angle X and Y. So PQ, okay. Now just look here class. Dekho, you need to find this angle X and Y. It means they are talking about this angle. So, इसके लिए हमें construction कर रहे हैं बेटा. What construction we are doing? Just look here. Construction, draw. हम एक line draw कर रहे हैं. Okay, we are just drawing a line. Let's say this is MW. Draw MW parallel to PQ. आप इसको PQ के parallel बनाओ चाहे RS के parallel बनाओ, it's your wish. अब एक बात बताओ, PQ RS के parallel है और MW भी PQ के parallel है. It means MW will be parallel to RS also. If two lines are parallel to same line, just look here. If two lines are given to you and if they are parallel to same line, it means what? It means they are parallel to each other, right? If two lines are parallel to same line, it means they are parallel to each other. हमने ये थ्योरम पढ़ी थी. मैंने बोला MW तुमने कंस्ट्रक्ट किए PQ के पैरेलल और PQ RS के पैरेलल है, राइट? यानी MW भी PQ के पैरेलल है और RS भी PQ के पैरेलल है. It means we can say MW is parallel to RS, right? So just look here from 1 and this is 2. So from 1 and 2, what you can say? You can say MW is parallel to RS. MW को हमने PQ के पैरेलल बनाया, राइट? MW को हमने PQ के पैरेलल बनाया और PQ RS के पैरेलल थी. इसका मतलब MW भी PQ के पैरेलल है, RS भी PQ के पैरेलल है, तो MW is parallel to RS. Just look here, PQ is parallel to RS, PQ is parallel to MW, so MW is parallel to RS. Then now just look here, I'm just naming these two angles as A and B. अब एक बात बताओ, these two lines are parallel, then this is going to be our transversal. ये हमारी क्या हो जाएगी? Transversal. Transversals, angles on same side of transversal are what? Co-interior angles. So it means I can say A plus 135 is equals to 180 degrees. So A is going to be what? 180 minus 135, which is 10 minus 5, 5, 7 minus 3, 45. So this is 45 degree. And reason will be co-interior angles, or you can say angles on same side of transversal, right? देखो बहुत इजी होता है पहचानना. ये दो पैरेलल लाइंस है तो ये ट्रांसवर्सल होगी हमारी. ऑब्वियस हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये इसको इंटरसेक्ट करेगी. सो वी कैन से दिस इज आल्सो अ ट्रांसवर्सल. These are the angles on same side of transversal. So sum of these angles will be what? 180 degree. Now ये तो हमने A को निकाला, बट हमें A की जरूरत नहीं है, अभी हमें B भी निकालना पड़ेगा. So how? Again, these two lines are parallel. MW and RS. Just look here. MW RS ये parallel है. ये हमारी ट्रांसवर्सल हुई.
Just look here, diagonally opposite angles. What are these? These are alternate interior angles. So B will be equals to 40 degree. Alternate angles, right? यानी B 40 डिग्री हो जाएगा. A भी मिल गया, B भी मिल गया. But what are they asking you to find? They are asking you to find X and Y. X and Y. This is our angle which is made up of two angles A and B. So angle X and Y will be equals to A plus B. A is what? 45. B is what? 40 degrees. So this is going to be 85 degrees. I hope everybody is very much clear with the concept. Now moving on to next part, next question. What is there in this question? Just have a look here. Beta, I hope you understood the question well. Again, I'm just explaining. Just look here. We have drawn two lines. MW is parallel to PQ. Just look here. है ना? उसके बाद क्या हुआ? PQ RS के parallel है. MW PQ के parallel है. It means MW is parallel to RS. अभी देखो ये को इंटीरियर एंगल्स है. इट मींस A plus 135 will be 180 degree. A plus 135 will be 180 degree. Angles on same side of transversal. तो A की वैल्यू हमने कैलकुलेट की 180 minus 135 which is 45 degree. Clear? Now what? अभी these two lines are also parallel. MW और RS parallel है तो ये हमारी transversal हो गई. It means these are what? These are alternate angles B and 40. आपकी ये दो लाइन्स हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो these two angles are what? These are alternate angles, diagonally opposite angles, right? So these are alternate angles. ये alternate angles equal होते हैं, यानी अगर ये B है तो this is also going to be 40, right? So B 40 degree हो गया, A भी हमको मिल गया, but we need to find X and Y. X and Y is what? A plus B, which is 45 plus 40, which is 85. I hope everybody is very much clear. Now moving on to next. Alright, now next part. What is there in this question? Just taking this example number 5. Okay, beta. If a transversal intersect two lines such that the bisector of pair of corresponding angles are parallel. ध्यान से सुनना बेटा. If a transversal intersect two lines, lines हमको parallel नहीं बोली है, दो lines है, उनको कोई transversal intersect करिए. प्लीज ध्यान से सुनिएगा. This is example number 8. Right? क्या बोल रहे हैं? दो लाइंस हैं, आप उसको कुछ भी नेम दे दीजिए, P and Q. PQRS. हाँ, ये बोल रहे हैं ट्रांसवर्सल, इसको कट करिए. ठीक है, ट्रांसवर्सल कट करिए. These lines are not at all parallel. जब तक आपको मैथ्स में पैरेलल नहीं बोला जाएगा, you cannot just assume कि ये पैरेलल है, हमको दिखाई दे रही है, हमने पैरेलल मान ली. No. PQ and RS are two lines and a transversal intersect. हमारी transversal है, suppose let's say this is A, B, C, D. I'm just saying AD is our transversal. Now what? Then what we need to do, that bisectors, what is given? Bisectors of pair of corresponding angles. पहले तो corresponding angle पहचानो कौन से हैं. अगर मैं बात करूं ये और ये corresponding ले सकती हूँ. Yes, these are corresponding angles. लेकिन ये इक्वल नहीं है बच्चे. Why? Because lines are not parallel. अगर lines parallel नहीं है तो हम नहीं कह सकते कि corresponding angles equal है. अगर lines parallel है तो हम कह सकते हैं कि corresponding angles are equal. ये क्या बोल रहे हैं? The question is saying कि इनके bisectors, let's say this is BX, this is CY. These are the bisectors. So what is given in the question? Given BX bisects एंगल BQ, ये BX किसको बाइसेक्ट कर रहा है? ABQ. एंड CY बाइसेक्ट्स एंगल BCS. ये लाइंस पैरेलल नहीं दी हुई हैं और आपको बोल रहा है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के जो बाइसेक्टर्स हैं वो पैरेलल हैं. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के जो बाइसेक्टर्स हैं वो पैरेलल हैं. सो वी विल ऑल्सो अज्यूम कि हाँ BX और CY are parallel. और क्या गिवन दिया हुआ है आपको? BX is parallel to CY, ये गिवन है. अब आपको प्रूफ क्या करना है? What is
what you need to prove in this question. They are saying you need to prove that two lines are parallel. Again, हमें दो लाइन दी हुई है, AB और PQ and RS are two lines, right? हमें अभी तक नहीं बोला है कि ये पैरेलल है. उसके बाद बोल रहे हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के जो बाइसेक्टर्स हैं. देखो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स दिए हुए हैं, पर ये हम इनको इक्वल नहीं बोल सकते. कब तक? जब तक कि लाइंस पैरेलल नहीं है. तो इनके जो बाइसेक्टर्स है BX एंड CY, they are saying कि BX and CY are parallel to each other and we need to prove कि दो जो lines हमने assume की थी शुरू में PQ and RS, ये parallel है. So what we need to prove? We need to prove PQ is parallel to RS. अब अगर हमें PQ और RS को parallel prove करना है, देखो कोई भी दो lines parallel कब होती है? या तो उनके corresponding angles equal prove कर दें हम, राइट, या हम प्रूव कर दें कि उनके को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री है, और हम प्रूव कर दें कि ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल है. अगर ऐसा केस होता है, इन तीनों में से कोई भी एक चीज हम प्रूव कर देते हैं, तो वी कैन से लाइंस आर पैरेलल, राइट. तो ऐसा ही कुछ हम इस क्वेश्चन में करेंगे. सो जस्ट लुक हियर व्हाट आर वी गोइंग टू डू. सबसे पहले तुमको BX और CY पैरेलल दिख रहे हैं. डू यू सी? ये हमको गिवन है BX एंड CY पैरेलल, तो ये हमारी ट्रांसवर्सल हो गई. इसका मतलब क्या है? ये तो हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, क्योंकि ये दो लाइंस पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है. सो दीज टू आर आवर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. अंडरस्टूड? दीज आर आवर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, और ये इक्वल भी होंगे क्योंकि हमको BX और CY तो पैरेलल दिए हुए हैं. लाइंस पैरेलल नहीं दी है, बट BX इज पैरेलल टू CY. सो मैं इनको कुछ नेम्स दे रही हूँ. इसको X अज्यूम कर रही हूँ और इसको Y. एंड अगर ये x है तो ये x होगा, क्योंकि ये बाइसेक्टर है. ये y है तो ये y होगा. कैन यू से x इज इक्वल्स टू y? यस ऑफ कोर्स, क्योंकि देखो ऐसे दो लाइंस बन रही है, उनको एक ट्रांसवर्सल कट करती हुई जा रही है, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है. यही चीज है यहाँ पे. ये दो लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल हो गई हमारी. सो दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. सो आई कैन से x इज इक्वल्स टू y. रीजन बीइंग कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. And we have BX is parallel to CY. ये हमको दी हुई है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल होंगे. अब पर हमें ये नहीं चाहिए, हमको तो PQ और RS को पैरेलल प्रूव करना है. अगर मैं कैसे भी प्रूव कर दूं कि एंगल ABQ और BCS इक्वल है, तो इट मींस कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे एंड लाइंस विल बी पैरेलल. सो हाउ यू गोना डू इट? जस्ट लुक हियर. X और Y इक्वल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स मल्टीप्लाइंग both the sides by 2. देखो तो 2x is equals to 2y आ गया. आप इक्वेशन को लेफ्ट से 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो राइट से भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. एक बात बताओ, व्हाट इज 2x? दिस इज 2x. x plus x 2x. कौन सा एंगल है ये? ABQ. सो दिस इज एंगल ABQ. व्हाट अबाउट 2y? 2y इज दिस एंगल व्हिच इज BCS. 2y यहां से यहां तक का एंगल. कौन सी रे से? ये दिस इज द एंगल. कौन सी रे से मिल रहा है? CB और CS से. सो दिस इज एंगल BCS. नाउ ABQ ये वाला एंगल, BCS ये वाला एंगल, ये तो हमने इक्वल प्रूव कर दिया. इसका मतलब हमने तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल प्रूव कर दिया. और अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, तो जो लाइंस हैं दे विल बी पैरेलल. दे विल बी पैरेलल. हमने क्या प्रूव कर दिया? एंगल ABQ इज इक्वल्स टू BCS. एंगल ABQ, जस्ट लुक हियर, एंगल ABQ is equals to BCS, right? हमने प्रूव किया ABQ is equals to BCS. It means this implies that corresponding angles are equal. I'm just writing it here. बेटा 2x is equals to 2y. 2 से मल्टीप्लाई किया, x is equals to y हो गया, क्योंकि ये दो लाइंस पैरेलल है, corresponding angles are equal. Multiplying both the sides by 2. 2 into x, 2 into y. 2x is what? This angle ABQ, ये लिखा है, और 2y means what? Angle BCS, right? Okay. Now, to ABQ और BCS equal है, it means corresponding angles are equal. और अगर corresponding angles equal है,
दिस इंप्लाइज दैट कौन सी दो लाइंस की कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है ये, PQ एंड RS. So PQ is parallel to RS, right? So I hope you understood the question here. Now moving on to next part. Okay, now this is example number 8, which is very important. Okay, very important example number 8, page number 106, right? Okay class, we have a diagram given in this question. This is a good question, not at all tough. Okay, this is the diagram given in the question. The sides AB and AC of triangle ABC are produced to point A and D. Bisectors BO and CO of angle CBE and angle BCD. Just look here. तो हमको सबसे पहली चीज जो गिवन है वो क्या गिवन है कि BO जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है कौन से एंगल को, CBE को, एंगल CBE, right? Similarly CO bisects what? CO bisects angle BCD. Angle BCD. What we need to find? Okay, we need to prove something. We need to prove angle BOC is equals to what? 90 minus half of angle BAC. Just look here. Now what we need to prove? We need to prove BOC is equals to 90 degree minus half of angle BAC. So how we are going to do it? Just have a look here. देखो क्लास, हमको प्रूव करना है BOC is 90 minus half of angle BAC. 90 degree minus half of angle BAC. Actually in this question what we have, देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमें रिलेशनशिप चाहिए BOC और BAC के बीच में, यानी इन दोनों ट्राइंगल्स को किसी ना किसी तरीके से हमें रिलेट करना है, राइट? आपको जैसे भी इजी लगे यू कैन स्टार्ट द क्वेश्चन, राइट? आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है यू विल श्योरली गेट द प्रूफ एंड द सोल्यूशन. सो इन दिस क्वेश्चन मुझे किसी भी तरीके से इन दोनों एंगल्स को रिलेट करना है क्योंकि मेरी इक्वेशन है, मुझे जो प्रूव करनी है इट इज एंगल BOC इज 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल BAC, राइट? तो चलो करते हैं. मैंने तुमको पहले भी बोला है जैसे ही बाइसेक्टर्स हो आप इसको x और x अज्यूम कर लीजिए, दिस इज y एंड दिस इज आल्सो y बिकॉज दीज आर बाइसेक्टर्स. हमको गिवन है ये और ये इक्वल है एंड दिस इज इक्वल्स टू दिस वन, राइट? ओके, आई होप इट इज वेरी मच विजिबल टू यू, राइट? ये y है, मैं ज्यादा कुछ नहीं कर रही, सिर्फ समझा रही हूँ. दिस इज y, दिस इज आल्सो y. अब देखो बेटा, सबसे पहले मैं इस ट्राइंगल को की बात कर लेती हूँ. इस ट्राइंगल में x प्लस वाई प्लस एंगल O 180 डिग्री होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से. क्या मैं x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कुछ ऐसा कर सकती हूँ कि इस x को और y को कुछ रिलेट कर सकती हूँ विद द ट्राइंगल ABC? यस ऑफ कोर्स. हाउ? जस्ट लुक हियर. मैं अगर इफ यू विश आई कैन जस्ट गिव द नेम W and Z. ऑलराइट, तुम्हारे एग्जाम्पल में शायद XY जो भी दिया हुआ है, I'm just explaining this. Okay, I'm just taking variables x, y, and z, and w also. Now just look here. अगर मैं बात करूँ x plus w, ये 180 डिग्री होगा. क्यों होगा? देखो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है? अगर एक स्ट्रेट लाइन है उस पर आप एक पॉइंट पे कितने भी एंगल्स बना दो, उन सब का सम हमेशा 180 डिग्री आएगा. रीजन भी इट इज अ स्ट्रेट लाइन. 180 डिग्री सेमी सर्कल बनता है, 180 डिग्री का एंगल होता है, राइट? सो है ना, ऐसे अगर ऐसे दिया हुआ है तो यू कैन नॉट से दिस इज 180 डिग्री इसका और इसका सम. नो, आप एक पॉइंट पे कितने भी एंगल्स, मतलब इनके कॉमन वर्टेक्स है, एडजेसेंट एंगल्स बना रहे हो एक स्ट्रेट लाइन पे, राइट? तो वो एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है. सो सिमिलरली यहाँ पर भी तो यही हो रहा है. देखो तो
इस बी पॉइंट पे 3 एंगल्स बन रहे हैं, एक्स और डब्ल्यू। तो एक्स प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। इट मीन्स मैं लिख सकती हूँ 2x प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस डब्ल्यू, और x विल बी इक्वल टू व्हाट, ये 2 मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड में होगा, यानी मैं इसको लिख सकती हूँ 180 माइनस डब्ल्यू अपॉन 2, राइट। x को क्या लिख सकती हूँ 180 माइनस डब्ल्यू अपॉन 2, राइट। नाउ इसका क्या मतलब है बच्चों, इसका मतलब है x इज इक्वल, मैंने तुमको पहले भी बताया 180 माइनस डब्ल्यू अपॉन 2 का मतलब है 180 will be divided by 2 and w will also be divided by 2। आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि मैम ये 90 minus w, no, this is not correct, okay। so this is 180 minus w upon 2, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 180 divided by 2 which is 90 and w upon 2। ये मैंने x की वैल्यू निकाली। सिमिलरली मैं y की वैल्यू भी निकाल सकती हूँ, कैसे, वही सेम चीज, z plus y is 180 डिग्री, 2y is equals to 180 minus z, right, and y will be 180 minus z upon 2 which is 180 upon 2 is 90 and this is z upon 2। चलो हमको x भी मिला, हमको y भी मिला which is 90 minus z upon 2, right। मैम x और y we have got but अभी तो कोई रिलेशनशिप आया ही नहीं है। So how we are going to do it? Just have a look here। हमें x की वैल्यू मिल गई, हमें y की वैल्यू मिल गई, एटलीस्ट कैसे भी करके हम एंगल BOC को अपने एक रिलेशनशिप बना सकते हैं BOC के साथ। Yes of course, x plus y plus angle BOC is 180 degree because it's a triangle। ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी वापस बता रही हूँ, x plus w is equal to 180 डिग्री, z plus y 180 डिग्री। मैंने x और y की वैल्यू निकाली है, जो हमारा ट्राइंगल BOC है उसकी दो एंगल्स की वैल्यू हमने निकाली है। अब मुझे पता है कि x plus y plus एंगल BOC इसका सम तो 180 डिग्री होगा। कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हो, इन ट्राइंगल BOC। ओके, नाउ x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू तो 90 माइनस w अपॉन 2 है, y की वैल्यू कितनी है 90 माइनस z अपॉन 2 है, फिर BOC की जगह BOC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ जस्ट टेल मी, लुक हियर, देखिए दिस इज 90 दिस इज 90, 90 प्लस 90 180 माइनस w अपॉन 2 माइनस z अपॉन 2 प्लस एंगल BOC। सिर्फ सिंप्लीफाई करिए बेटा, 90 प्लस 90 180 माइनस w अपॉन 2 माइनस z अपॉन 2 प्लस BOC इज 180। ये 180 से 180 कैंसिल, 180 से 180 तो कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे, अब हमको इक्वेशन मिली ये, है ना। तो मैंने क्या किया बच्चों, 180 से 180 कैंसिल हुआ, मुझे मिला ये BOC। ये माइनस का w अपॉन 2 था, इधर जाएगा प्लस का w अपॉन 2 हो जाएगा। ये माइनस का z अपॉन 2 था, ये भी प्लस का z अपॉन 2 हो गया। I hope everybody understood what I am trying to tell, right? Okay, now what are we going to do? कुछ नहीं करेंगे, BOC है, यहाँ से हाफ कॉमन लो, w प्लस z। बेटा पर ये क्या हो रहा है, हमें तो ये प्रूव करना है, ये तो आया ही नहीं है। हाउ वुड वी फाइंड इट आउट, हमको BOC तो मिल गया पर राइट में ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, राइट। तो w प्लस z की जगह मुझे कहीं ना कहीं से BAC लेके आना है। क्या मैं w प्लस z और BAC का कोई रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकती हूँ? यस ऑफ कोर्स। हाउ, देखो मुझे पता है एंगल A प्लस w प्लस z तो 180 डिग्री होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो मैं w प्लस z की जगह 180 माइनस एंगल A लिख सकती हूँ, पुटिंग इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो मैंने BOC की जगह BOC लिखा, हाफ की जगह हाफ लिखा, w प्लस z की जगह क्या लिख सकती हूँ 180 माइनस एंगल A। ये देखो अब हमारा प्रूव हो गया। कैसे प्रूव हो गया, जस्ट टेलिंग यू, जस्ट रबिंग दिस, ओके। आई डोंट वांट टू रब दिस बिकॉज़ आई जस्ट want to make you revise this thing again, so I'm just taking this part, okay। So this is BOC is equals to half of 180 minus angle A। So this BOC is what, देखो ये हाफ ब्रैकेट के बाहर है, मतलब ये हाफ 180 से भी मल्टीप्लाई होगा
दिस इज एंगल BOC, किसके इक्वल होगा, हाफ मल्टीप्लाई विथ 180 विच इज 90 एंड देन हाफ मल्टीप्लाई विथ एंगल A विच इज हाफ ऑफ एंगल A. एंगल A मीन्स व्हाट, एंगल A इज एंगल BAC. A मतलब BAC भी लिख सकते हो. So this implies that angle BOC is 90 minus half of angle BAC. I am just explaining it again. इसमें तुम्हें ये बाइसेक्टर दिया हुआ है, ये बाइसेक्टर दिया हुआ है. सिंपल बाइसेक्टर है तो ये x और x, ये y और y. कुछ नहीं किया, स्ट्रेट लाइन है. x plus w is 180 डिग्री, 2x plus w 180 डिग्री, 2x हो जाएगा 180 minus w. तो x क्या हो जाएगा, मैं क्या कर रही हूँ इस क्वेश्चन में, मैं x और y की वैल्यू निकाल रही हूँ. सिंपली x और y की, तो x is 180 minus w upon 2, यानी x is equals to 180 upon 2 which is 90 minus w upon 2, right? Similarly मैंने इस वाले this is a straight line, तो मैंने यहाँ से y की वैल्यू निकाली. कैसे, z plus y is 180 डिग्री. So y plus y is 2y, 180 minus z. y की वैल्यू हो जाएगी 2, मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में गया, 180 minus z upon 2, 180 upon 2 90 z upon 2. फिनिश. मुझे x और y की वैल्यू पता चल रही है. तो सबसे पहले मैं उस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊंगी जिसमें x और y दिए हुए हैं. तो मुझे x और y किस किस में दिए हुए हैं, दिस इज x, दिस इज y. कौन से ट्राइंगल की बात कर रही हूँ, x y, एंड दिस इज एंगल BOC ट्राइंगल आई एम टॉकिंग अबाउट. तो मैंने वहां एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी. कैसे, x प्लस y प्लस एंगल BOC 180 डिग्री होगा. इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं. x की वैल्यू मुझे पता है 90 माइनस w अपॉन 2, y की वैल्यू भी मुझे पता है 90 माइनस z अपॉन 2 प्लस एंगल BOC इज 180 डिग्री. 90 प्लस 90 180 माइनस w अपॉन 2 माइनस z अपॉन 2 प्लस एंगल BOC 180. 180 से 180 कैंसिल. यहाँ से मुझे BOC की वैल्यू मिली. BOC इज व्हाट, ये माइनस का w अपॉन 2 था प्लस w अपॉन 2 हो गया, माइनस का z अपॉन 2 है प्लस z अपॉन 2 हो गया, राइट ना. यहाँ से मैंने हाफ कॉमन लिया. देखो 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2, अंदर बचेगा w प्लस z. इस w प्लस z को क्या लिख सकते हो, w प्लस z, ये ट्राइंगल के तीन एंगल्स, इनका सम 180 है, तो w प्लस z इज 180 माइनस एंगल a, राइट. कैसे, एंगल a प्लस एंगल w प्लस z, a w z 180 डिग्री होगा. w प्लस z इज व्हाट, 180 माइनस एंगल a. हम w प्लस z की जगह वैल्यू पुट कर देंगे 180 माइनस ए. सो BOC की जगह BOC इक्वल टू इज देयर, हाफ इज आल्सो देयर, हमको रिमूव नहीं करना है. W plus Z is what, 180 minus angle A, and we have just solved. Then BOC is half of 180, 90, half of angle A लिखा हुआ है. So it means angle BOC is 90 minus angle A is what, BAC. यही तो है BAC. Angle A is what, BAC. So hence we have proved. So this is proved. Understood? I hope everybody is very much clear with the concept in this question. But still I want you to try it by your own. अगर कोई problem होती है you can always ask me, okay, in live class. So thank you so much. Next chapter which we are going to start will be triangles. Okay, thank you so much.